Hello students, in my last class I explained you how we can find out domain and range of modulus function, polynomial function, rational function. Today I will explain you how we can find out domain and range of square root function, trigonometric functions and those functions in which there are two functions are given together. So in rational function I told you that denominator, in this function I told you that denominator should not be equal to 0. ये key points, these are the key points which should be always on your tips while solving any question from the domain and the range, and you should be able to identify to which category your question belongs to. Now square root function, I am taking one example. Fx is equal to, suppose it is x minus 1. It is x minus 1. As I told you, for rational function, what is the condition to be applied? That denominator should not be equal to 0. Because when denominator becomes 0, then your question becomes undefined. What is the domain and range? Domain and range means those values for which our function remains defined. And here also means, defined means it remains as the subset of real numbers. Here also you can see, here if any value of fx comes negative of this square root के अंदर अगर negative आ जाता है, then it is not a real number, it becomes a complex number. About that we will study later on. But in that case it means it will not remains in the defined form. It will not be defined in real numbers, because we are talking about only real functions. Because the domain and range should lie in the real numbers only. But if we put any value of x for which it becomes a negative, then this fx means y means a range that will go out of the real numbers. तो x की हमें वो कोई भी वैल्यू नहीं पुट करनी जिसके लिए ये मेरा fx जो है वो रियल नंबर से बाहर चला जाए. तो अब मुझे वो x की वैल्यूज देखनी है जिसके लिए ये क्या रहे, पॉजिटिव रहे. नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो सकता है, यस हो सकता है, जीरो हो सकता है, हो सकता है. उसके लिए ये रियल नंबर्स में देखो ना, अगर ये है स्क्वायर रूट 2, then it is a real number, it belongs to real numbers. If it is square root of 0 means 0 is also real number, it is also real number. But if it is square root of minus 2, then it doesn't belongs to real numbers. फिर ये real number में नहीं रहेगा. इसलिए मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे पास जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव हो. तो फिर मैं क्या चाहूंगी? मैं चाहूंगी कि स्क्वायर रूट के अंदर whatever is the expression, ठीक है, अंडर दिस स्क्वायर रूट साइन, दैट मस्ट बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वो या तो क्या हो, 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यानी कि x की वैल्यूज अगर 1 या 1 से बड़ी आती हैं तो अल्टीमेटली ये अपने आप एक्सप्रेशन जो है वो 0 या 0 के से बड़ा होगा. आप करके देख लीजिए. अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 0 आता है. अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे तो क्या आएगा? अकेले पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा. तो x की जो कंडीशन होती है दैट इज योर डोमेन. तो आपके पास डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया इसमें? 1 to infinity. What is this? 1 to infinity, because equal to sign is here, so it will be closed bracket here, and you know with the infinity it is always open bracket. Now for range we will follow the same algorithm which I explained you in my previous class, that first of all put y is equal to fx. So y is equal to fx. What is the fx? This. Now we'll solve it for x. We'll solve it for x. So now taking square on both sides, y square is equal to x minus 1. I want to get it in the form of x, so it will be x is equal to y square plus 1. Let me tell you one point that is very important, that whenever we deal with any square root function,
टाइम पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर रेंज निकालते हुए पर्टिकुलरली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये y है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास ये है, ये कभी नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये कभी नेगेटिव नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके पास x क्या आया है, x इज y स्क्वायर प्लस 1, x इज दिस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x गिवन टू यू, दैट इज, हम इसको 1 मान लें, बाय 1 वी हैव x is always greater than equal to 1, so it means y square plus 1 is greater than equal to 1, so y square is greater than equal to 0, so y is greater than equal to 0। y की कंडीशन क्या होती है, that is your range। लेकिन एक चीज आपने हमेशा 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 याद रखनी है, जब भी आप स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन रेंज निकालते हैं, तो जब भी रेंज निकालें एक बार वो देख लीजिए वैल्यू, जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसने वैसे ही बोल दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, सो यू कैन राइट इट दैट योर रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी, दिस इज योर रेंज। हाँ जी, दिस इज योर अनदर एग्जांपल ऑफ अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या रूल बताया, व्हाटएवर द एक्सप्रेशन इज हियर, ये जो एक्सप्रेशन है आपका दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस एक्सप्रेशन जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका रूल है। जैसे इसका रूल मैंने रेशनल फंक्शन का हमेशा बताया, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वैसे ही आपको स्क्वायर रूट का याद रखना पड़ेगा कि व्हाटएवर द एक्सप्रेशन इज रिटन हियर इन द स्क्वायर रूट that must be greater than equal to 0, this is greater than equal to 0। अब इसको ऐसे अगर आप कर देते हैं x square is greater than equal to 4, x is greater than equal to plus minus 2, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको 6 जो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में दैट आई एक्सप्लेन यू, आप मेक द फैक्टर्स ऑफ इट, आप इसके x minus 2, x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या समझाया था, इसमें फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को रखकर x यहाँ से 2 आ गया, इधर माइनस 2 आ गया। आप नंबर लाइन पर लिखिए -2 एंड 2, आपके पास 3 इंटरवल्स हैं, एक है माइनस इंफिनिटी टू -2, एक इंटरवल है -2 से लेकर 2 तक, ये पहला, इधर दूसरा, और तीसरा इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, आप पहले इस वाले इंटरवल में यहाँ पर कोई वैल्यू लीजिए, -2 से स्मॉलर, यानी -3 ले लो आप। अगर आप -3 रखते हो, आप देखो इधर -3 -2 इंटू -3 प्लस 2, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद अगर -2 और 2 के बीच में 0 आता है, 0 रख के देख लो, 0 - 2 नेगेटिव आ रहा है, 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। दोबारा बताती हूँ, देखो जरा, अगर आपने -2 और 2 के बीच में एक कोई भी पॉइंट ले लिया, आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं इसको। अगर आपने x = 0 लिया, तो 0 - 2 आपने देखना है साइन कौन सा आ रहा है, 0 + 2 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव लिख दिया। अब 2 से इंफिनिटी तक कोई नंबर 3 ले लो आप, चलो x = 3 लिया, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये साइन है। अब आपको कौन सा चाहिए, इधर की साइड, इसने बोला दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव साइन चाहिए, और पॉजिटिव कहाँ पर है, ये है, और आपके पास ये है। ठीक है, पॉजिटिव कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर, 2 जगह पर है, तो आपके पास ये है आंसर आपका। क्या क्या है देखिए जरा, -∞ to -2 यूनियन 2 विल बी विद द क्लोज्ड ब्रैकेट, इक्वल टू साइन है, यूनियन 2 to infinity, this is 2 to infinity। okay, this is your domain of the function। अब range of the function निकालेंगे, range of function के लिए वही एल्गोरिथम हम फॉलो करेंगे दोबारा से। ठीक है, ये आ गया डोमेन। ओके, क्योंकि डोमेन इसमें समझ आया आपको ये कि इधर हमने पॉजिटिव वाला क्यों लिया, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है हमें वो कंसिडर करना है कि यहीं पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर तो अगर कोई वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव
नेगेटिव आ जाएगा और वो रियल नंबर्स में नहीं रहेगा। वेल डिफाइंड आपका fx वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, वो हमारा डोमेन नहीं हो सकता। फॉर रेंज, जब हम रेंज के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, वही चीज fx को y लिख के आप इन टर्म्स ऑफ x इसको कैलकुलेट कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। अब आप x स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 4, तो आपके पास x क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पर x के टर्म्स में आ गया, हमने पुट y इज इक्वल टू फिक्स किया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड और रियल। अब आप y की क्या वैल्यूज रखें कि ये x वेल डिफाइंड रहे, x वेल डिफाइंड का मतलब ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर दोबारा से एक तरीके से कह लो कि दोबारा जिस तरीके से यहाँ पर चेक किया, ये कौन सा फंक्शन आ गया जी, ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, तो आपने ये देखना है कि अब y की क्या वैल्यूज पुट करोगे कि ये आपका पॉजिटिव रहे। अब आप ये देखो, अगर ये y स्क्वायर माइनस 4 होता तब तो मुझे एक डर भी था कि भाई मैं अगर सपोज करो यहाँ पर 1 रख देती हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4, ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, लेकिन बीच में साइन है प्लस प्लस, तो ये प्लस होने की वजह से, और ये स्क्वायर है, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। देखो क्या है ये, y स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, स्क्वायर आ गया, इवन पावर के साथ हमेशा पॉजिटिव, और ये प्लस 4 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो तो आपको देगा नहीं, है ना, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि y की तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना आपका ये कभी जीरो बन ही नहीं सकता। y स्क्वायर प्लस 4 कांट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, किसी के लिए नहीं हो सकता ये नेगेटिव, क्योंकि y स्क्वायर पॉजिटिव है और पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करते हैं तो वो जीरो कभी नहीं बन सकता इसका, या कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स के लिए आप इसको दिस इज पॉसिबल। लेकिन आप अपना क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है आप ये तो समझ लो कि ये जो आपका y है वो कभी नेगेटिव नहीं है, ये बाहर पॉजिटिव है इसकी, ये नेगेटिव नहीं है स्क्वायर रूट फंक्शन, ये y जो है आपका y, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू fx, इट कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता कहीं भी। इसका मतलब रियल नंबर्स में से नेगेटिव वाली वैल्यूज आप हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचा y, तो y बचा, देयरफॉर जो रेंज बची आपके पास, रेंज ऑफ द फंक्शन बची, वो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से नेगेटिव वैल्यूज हटा दो, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती स्क्वायर रूट फंक्शन में, तो आपके पास बचा 0 टू इंफिनिटी रह गया। इसका मतलब y की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती है। हाँ जी, देखिए आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल, डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए फिर वही, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसका रूल क्या होता है स्क्वायर रूट फंक्शन में, व्हाटएवर द एक्सप्रेशन इज देयर इनसाइड द स्क्वायर रूट वी विल राइट डाउन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं इसके भी, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको भी 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करके और इसको 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ जाएंगे, -3 एंड +3। ये प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी, और ये आपके पास 3 इंटरवल्स हो गए, है ना। अब आपको ये चेक करना है किस इंटरवल में आपके पास ये पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करो, -4 पुट करना जी, 3 माइनस -4 पॉजिटिव हो गया, 3 माइनस 4 माइनस हो गया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब आप नेक्स्ट कीजिए, तो -3 से 3 0 0 रख दीजिए, 0 आएगा तो ये पॉजिटिव, 0 आएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये हो गया। अब इसके बाद आप इधर आ जाइए, 3 टू इंफिनिटी में आप सपोज कीजिए आपने 4 ले लिया, 3 माइनस 4 नेगेटिव, 3 प्लस 4 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव
नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपको कौन सा चाहिए, आंसर किस में है, आपको क्या चाहिए था, ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव कहां पर है आपके पास, यहां पर है। तो क्या है आपके पास, डोमेन क्या आ गया आपके पास, -3 to 3, क्लोज इंटरवल लगाना है या ओपन, एट दैट डिपेंड्स अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन, देयरफॉर this is your domain of this function. For range फिर वही एल्गोरिथम चलेगा आपका, y fx is equal to y लिख के write it in terms of x, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, अब x की टर्म्स में आप इसको निकालेंगे तो ये आपके पास ऐसे आ गया, फिर ये x आ गया, फिर दोबारा से कौन सा फंक्शन आ गया आपके पास, ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। फिर वही रूल चलेगा स्क्वायर रूट फंक्शन में कि भाई जो भी x आने के बाद आपने क्या चेक करना होता है कि आपके पास फंक्शन कौन सा है। अगेन इट इज द स्क्वायर रूट फंक्शन। फिर स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या रूल है कि व्हाटएवर इज हियर राइट इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं आ गया जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो आपके पास x की क्या वैल्यू निकली थी, -3 to 3 निकली थी। ऐसे ही जब आप इसके लिए करेंगे तो फिर वही आएगा, अब आएगा y, जैसे ये x आया था आपका -3 to 3, वैसे y भी आ जाएगा -3 to 3। लेकिन एक बार y निकालने के बाद क्या करना होता है, आपको दोबारा एक बार चेक करना है कि आपका फंक्शन कौन सा y, ये जो है आपके पास ये y जो है वो कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, एंड देयरफॉर इट कांट बी नेगेटिव। बट y can't be negative in this question, negative, okay, in this question ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन में नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन का क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं, यहाँ पॉजिटिव है, बाहर इसके पॉजिटिव है, तो इस वजह से अब -3 to 3 में से नेगेटिव वैल्यूज आपको हटानी पड़ेगी, वो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, वो हमारा कभी आंसर आ ही नहीं रहा है। तो हम सिर्फ वही वैल्यूज y की यहाँ से लेंगे जो हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास नेगेटिव जब आ ही नहीं रहा तो हम कैसे लिख लें, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेंज क्या है आपके पास 0 to 3, ये आपकी रेंज है इस फंक्शन की। You can see I have included 0, क्लोज ब्रैकेट लिया तो 0 लिखा है क्योंकि y की वैल्यू 0 हो सकती है ना, स्क्वायर रूट में 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो that's why I have considered this close bracket. Now I have taken one more example. Look here. सबसे पहला काम क्या होता है, identify the type. अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं आप जरा उनमें से चेक करो कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, रैशनल फंक्शन, यस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन के लिए क्या रूल बताया था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें x की वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है रियल नंबर्स में से जहां पर जो x की वैल्यूज इसको 0 बना सकती है। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तब तो ये कभी 0 बन ही नहीं सकता था क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव में कुछ ऐड करोगे तो वो 0 तो कभी बनता ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यानी कि x की कुछ वैल्यूज के लिए 0 बन सकता है, तो वो कौन सी वैल्यूज हैं, तो x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू +-1, क्योंकि अगर आप +1 लेते हो तब भी 1 - 1 0 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि, और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है तब भी ये 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन हुआ वो हुआ ऑल रियल नंबर्स। यू कैन पुट एनी रियल नंबर फॉर विच दिस विल रिमेन डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड रहेगा सिवाय 1 या -1 की x की वैल्यू पुट करने के। तो हम उनको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, +1 -1 हटा दीजिए इन दोनों को, कि भी हम इनको नहीं पुट करेंगे क्योंकि इनको पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 होते ही हमारी जो इमेजेस हैं यानी y की वैल्यूज हैं वो अनडिफाइंड हो जाती हैं और हमें फंक्शन डिफाइंड रखना है। अब आ जाइए रेंज के लिए। रेंज के लिए अगेन यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स। पहले आप y इज इक्वल टू लिखिए fx को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसके बाद यू आर सपोज टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ y, सॉरी इन टर्म्स ऑफ x, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ x लेके आने के लिए मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y।
ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। तो x क्या आया आपके पास प्लस माइनस y माइनस 1/y। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास x की ही वैल्यू आ गई। अब आपने ये देखना है कि जब x आ जाता है तो जो y की टर्म्स में जो x आता है, ये आपको चेक करना है कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके पास दो टाइप के फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं, जल्दी सोचिए। यहाँ पर ये कौन कौन से दो फंक्शंस बन रहे हैं? यस एग्जैक्टली, सबसे पहले रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो उसका रूल लगाएंगे। उसके रूल के अकॉर्डिंगली क्या बनता है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ एक फंक्शन तो नहीं, दूसरा फंक्शन भी क्या है, कौन सा है वो, ये स्क्वायर रूट फंक्शन। और स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल क्या होता है, व्हाटएवर इज देयर इनसाइड द स्क्वायर रूट फंक्शन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरा एक्सप्रेशन जो है y माइनस 1 अपॉन y दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए ना कभी भी आपको दिखे ये ऐसे, अभी तक तो अभी हमने जो पहले किया था इससे, उसमें तो यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड थे, अब डिवाइड हो गए। तो आप एक काम कीजिए, इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, y माइनस 1 इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर, y को इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर ऊपर भी y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो बेटा, ये जो है स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो कभी आपका इसके ऊपर तो इस पूरे जो आपके पास ये फंक्शन है, ये तो चेंज करने से रहा उसका साइन, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स इनके देखने हैं। अब इनके आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखो तो क्या क्रिटिकल पॉइंट आए, इधर से y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या आएगा 1, और ये y इज इक्वल टू 0, तो 0 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखो इस इंटरवल का कोई पॉइंट पुट करो, माइनस 1 पुट कर दिया, आप माइनस 1 पुट करते हो, माइनस 1 माइनस में आएगा, ये नेगेटिव, ये भी माइनस, क्योंकि y माइनस लिया है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आप आ जाइए इधर, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लेना है, हाफ ले लेते हैं, तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव, और ये हाफ ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद इधर आ जाइए 1 टू इन्फिनिटी में, चलो 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और हमें कौन सा साइन चाहिए था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव, यानी ये वाला है ना। अब ये देखिए, तो आपका जो y की वैल्यू आई, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, अभी मैं जो इंटरवल्स के जो ब्रैकेट्स होते हैं मैं नहीं लगा रही, 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में तो और माइनस इन्फिनिटी तो ओपन आएगा। अब ये 0 और 1 में किस में ओपन आना है, किस में क्लोज आना है, देखो जी 0 इसने बोल दिया 0 इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, y 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए, यानी ओपन ब्रैकेट आएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो आप 1 को क्लोज ब्रैकेट ले लीजिए। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था 0, उसमें ओपन क्यों लिया, क्योंकि वो पहले हम शो कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में वैसे भी जो होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट शुड नॉट बिकम इक्वल टू 0, वो क्रिटिकल पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करना, उसके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो ये आपकी y की वैल्यूज आ गई। आप शुरू में देख लो, जो y है आपके पास वो स्क्वायर रूट फंक्शन तो नहीं है, शुरू में y ये है आपके पास y, ये स्क्वायर रूट फंक्शन तो नहीं है ना, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आ रही है वो हम एज इट इज एज अ रेंज ले सकते हैं। तो इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास आया माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज है। हाँ जी, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बताते हैं कि जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है f(x) = 2 + sin x, इसका डोमेन और रेंज निकालना है आपको। बेटा इसके लिए ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैसे sin x का ग्राफ, बेसिकली हम साइन और कॉस के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, sin x का डोमेन क्या होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। ऑल रियल नंबर्स, आप कुछ भी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज उसका ग्राफ जो होता है वो सिर्फ -1 to 1 ही होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं, ये sin x का ग्राफ होता है ऐसे, यानी ये आपका 1 है और ये है -1, तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। साइन का जो रेंज होता है वो -1 to 1 रहता है, और जो डोमेन होता है वो -∞ to ∞, यानी x की वैल्यू आप -∞ to +∞ के बीच में पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज सिर्फ -1 to 1। ओके, और cos x का जो ग्राफ होता है, ये मैंने y = sin x का बना के दिखाया आपको, ऐसे y = cos x का होता है, वो होता है 0, cos 0 पर 1 होता है, ग्राफ वो भी वैसे ही है। मैं सिर्फ अभी 2 का ही बता रही हूँ आपको, और किसी का यहाँ पर नहीं करा रही। तो यहाँ पर देखो 0 पर 0 था sin x में, cos x में 0 पर 1 है, वही है, ये भी 1 और -1 के बीच में स्विंग करेगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 to 1 ही रहेगी cos x की, और इसमें जो आपका रेंज -1 to 1, डोमेन आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो रहेगा। तो याद क्या रखना है, फिर दोबारा से अगर हम बात करें sin x और cos x में क्या बताया मैंने आपको, डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या रहेगा, -1 to 1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर है 2 + sin x। तो इसको करने का तरीका है, देखिए डोमेन तो अभी मैंने बताया कि x की सभी वैल्यूज के लिए, आप ऑल रियल नंबर्स के लिए आपको ये फंक्शन डिफाइंड मिलेगा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं जा रहा, -1 और 1 के बीच में रहेगा sin x। तो उसमें अगर +2 कर दोगे, जो भी वैल्यू आपकी sin x की -1 to 1 के बीच में आएगी, तो उसमें 2 डालोगे तो डिफाइंड ही रहेगा, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन पूरा का पूरा डिफाइंड है। तो इसका मतलब आप ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। फॉर रेंज की अगर हम बात करें, फॉर रेंज की बात करें तो क्या होगा, हाँ जी, रेंज के लिए हम इसमें सबसे पहले साइन x, जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन के लिए अलग तरीके से किया था, इसमें भी बाकी सब में, इन सब में आपको रेंज निकालने के लिए ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये एल्गोरिथम फॉलो करनी है, इन टर्म्स ऑफ x लेके आना है, और इस तरीके से इसमें, और मॉड्यूलस फंक्शन में कुछ अलग होता है। इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले साइन x, क्योंकि हमें ना इसकी रेंज पता है कि साइन x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहती है रेंज, जिसकी रेंज पता है हमने उसको लिख लिया। लेकिन अभी हमारा जो fx = ये y है वो अभी नहीं आया, वो कैसे आएगा, जब हम इसमें +2 करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एडिंग 2 ऑन ऑल हियर, +2 +2 +2, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, और ये y आ गया ना आपके पास, आ गया ना 2 + sin x, तो ये हो गया y <= 3। तो हमारी कंडीशन आ गई y की, तो y किसको बिलोंग कर रहा है, 1 to 3। तो हम यानी ये कह लीजिए कि ये हमारी रेंज आ गई 1 to 3। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ। सपोज कीजिए आपके पास है fx = -2 sin x + 3 है, -2 sin x + 3, ओके, या 3 - 2x sin x, आप कुछ भी मान लीजिए। तो डोमेन तो इसका वही रहेगा, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में आपको बताया था मैंने, डोमेन आपका वही रहेगा, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या रहेगा आपके पास, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंज के लिए करेंगे तो हम सबसे पहले जिसकी रेंज हमें पता है उतना वाला पोर्शन उठाएंगे, और वो है हमारा सिर्फ sin x। हमें सिर्फ sin x के बारे में पता है कि sin x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। लेकिन आप देखो sin x अकेला नहीं है, उसके साथ -2 मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी के साइन है, अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, सारी इनइक्वालिटी के साइन भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा -1 × -2, ये भी साइन चेंज हो गया, इधर आ गया, -2 × sin x, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये -2 × 1 -2 हो गया। तो ये 2 -2 sin x > -2। ध्यान रखना, कभी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस और सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर नहीं होती, एक और केस होता है, अगर आपने रेसिप्रोकल ले लिया तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है।
ठीक है, वो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी अभी आपको। अभी लेकिन आपके पास y नहीं आया, y स्क्वायर ऑफ x कैसे आएगा, +3 करने पर, तो आप +3 करेंगे यहाँ पर, -2 sin x +3 ग्रेटर देन -2 +3, तो ये हो गया 5 और ये आ गया y और ये हो गया आपके पास 1, यानी y बिगर है 1 से, ये 1 है ये 5 है ना, 1 and 5 सॉरी, y is greater than 1 and y is less than 5, तो आपके पास कॉमन रीजन 1 to 5 आ गया, तो आपके पास रेंज क्या आ गया 1 to 5। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके पास सपोज कीजिए ये है 2, यही वाला क्वेश्चन 1/1 + 3 sin x है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जिसका डोमेन ऑफ फंक्शन, हाँ जी डोमेन ऑफ फंक्शन में अपना भी इसको 4 लिख लीजिए इसको, और इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए, अब आपको पता है, देखो ये एक रैशनल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन में हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जहां पर ये 0 हो जाए। ठीक, अब अगर sin x कहीं -4 होता है तो ये 0 होगा, और हमें पता है sin x कभी भी -4 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि sin x तो सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही रहता है, वो कभी -4 कैसे हो सकता है, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए sin x कभी -4 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये आपका डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो हम लिखेंगे 4 + sin x is not equal to 0 for any value of x belonging to real numbers। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसी भी रियल नंबर के लिए ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। ये नॉट डिफाइंड किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड कब होगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 कभी भी नहीं हो रहा, यानी आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जल्दी से सोचिए कि डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर्स होगा, ऑल रियल नंबर्स। अब इसके बाद जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम सिर्फ वही वाला फंक्शन उठाएंगे जिसकी रेंज हमें ऑलरेडी पता है, वो पता है हमें इस sin x की। तो मैं ये लिखूंगी कि sin x मुझे पता है -1 to 1 है। ठीक है, लेकिन अभी ये 4 प्लस करना पड़ेगा हमें, तो -1 + 4 किया sin x 1 + 4, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4 + sin x, और ये आ गया 5। लेकिन आपने एक चीज देखी कि कहीं भी अभी भी ये हमारा फंक्शन नहीं बना। ये फंक्शन कब बनेगा, जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो आप ये देखो 2 is less than 4 है ना, आपको पता है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों के रेसिप्रोकल ले लिए, ये 1/2 बन गया और ये 1/4। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 तो लेस है ना। ये देखो जैसे ही रेसिप्रोकल लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गए कि नहीं हो गए। तो इसीलिए याद रखना साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज होते हैं, अगर तो आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन से, ठीक है, तब भी चेंज होंगे। और दूसरा कौन सा केस है जब आपके चेंज होते हैं, जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपके चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो अब मैं रेसिप्रोकल लूंगी इन ऑल दीज। ये हो गया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, पहले ये लेसर था अब ये ग्रेटर हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस साइन एक्स, ये लेसर था ये ग्रेटर हो गया, ये हो गया 1/5। सबका रेसिप्रोकल करना है। ये आ गया y आपके पास, तो ये आपका y बन गया ये। तो आपकी रेंज आ गई। रेंज क्या आ गई आपके पास 1/3 to 1/5 एंड विद द क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि सब में इक्वल टू साइन है। ठीक है जी। हाँ जी, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इसको देखें कि ये 1/5 का मतलब क्या है 0.2 और 1/3 का मतलब क्या है 0.3। ये 0.2 यानी 1/5 पहले आएगा और 1/3 बाद में। और इसमें भी बोला है y इज लेस देन 1/3 यानी इधर, और y इज ग्रेटर देन 1/5 तो इधर। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1/5 आपका y इज ग्रेटर देन 1/5 है, तो आपका जो रेंज बना है वो 1/5 to 1/3 होगा। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स,
I hope कि now concept of domain and range is now clear to everyone. अगर नहीं हुआ है, we will take more examples of domain and range, means the miscellaneous examples I will take in my next video, in which I will take all types of these functions. ठीक है, till then, goodbye.